Hello. Hello. Oh. Good evening. ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक अरसे के बाद मिल रहे हैं. नहीं ना? Well, at the outset, I'm extremely sorry that I could not conduct those sessions. I missed out on those. I had to go out on an urgent basis and could not even communicate it because the place where I was located, the network was not available too much. And anyways, once the time is gone, after that communication is not good. That's not expected. So that's why I felt like not to communicate on the group, but we'll surely be taking those sessions for the questions and answers. I've already shared the answers as well. I hope you have. Yes, I have. I hope you have cross-checked those answers, whomsoever have already seen it. Already shared it on the group only. हाँ, पर्सनली किसी को नहीं भेजा, डोंट वरी. सब लोग एक दूसरे को डाउट में देख रहे हैं, यार तेरे पास भेजे, मेरे पास अब तक के नहीं पहुंचे. So you can cross verify on those answers. If at all you feel there are some questions to be asked out of that, we will be having the queries on that also. Anyways, the new PDFs which are being shared with you people, in that you must be having a number printed on that in the footer. You can send across your queries on that number and you'll be getting the answers on that. That's a separate number that I've kept for solving the queries only. वो जो PDFs हैं उसके नीचे queries का number एक अलग से share किया हुआ है. So you can send across the queries on that number also instead of sending it on my primary number. है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है, घर वाले भी परेशान हो गए हैं, हमसे भी कभी बात कर लिया करो. है ना, हमारी क्वेरी भी हमको उसी नंबर पे भेजनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है. Anyways, sarcasm apart, let's come back. We were on to the topic of final account. We have discussed all the adjustments, including the adjustment related to bad dates and provision for doubtful debts and provision for discount on debtors. Now, instead of going ahead directly with the further part or the examples on that, let's try to focus upon this concept of the bad debts, provision for doubtful debts and the provision for discount on debtors. मेजरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, फाइनल अकाउंट में अगर बंदा गलती कर रहा है तो दो ही जगहों पे गलती करता है. एक डिप्रिसिएशन और दूसरा इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर किसी को लगाया जाए जहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं तो वो है रेक्टिफिकेशन. जहां भी अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह की एरर्स प्रोवाइडेड है इन द एडजस्टमेंट्स और उस एरर को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना है, तो या तो हम लोग वो एरर को साइडलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, या तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन सही नहीं करते हैं, या तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट देते हैं और दूसरे इफेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई फाइनल अकाउंट क्वेश्चंस जनरली गो रॉन्ग. तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे. पहले हम लोग फोकस करेंगे ऑन टू द पार्ट ऑफ द बैड डेट्स एंड प्रोविजंस. दूसरा हम फोकस करेंगे डेप्रिसिएशन पे और उसके बाद तीसरा हम लोग आएंगे रेक्टिफिकेशन पे. ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद में, जो कि कल शाम तक के हो जाएगा, ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विथ द कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स. मतलब ऐसा कि इस वीकेंड तक हमारा फाइनल अकाउंट खत्म होने वाला है और उसके बाद इमीडिएटली आई विल बी गोइंग बैक, शिफ्टिंग माय फोकस डायरेक्टली ऑन मॉड्यूल 1 in the sequence in which it is given, that is rectification, BRS, inventories, depreciation, bill of exchange, consignment. That is the sequence in which I'm going to go, right? हाँ, go अभी जाएंगे, don't worry. Goods on approval, of course. हाँ, सर वही सोच सकते हैं, घर वालों के सामने तो उसके अलावा कोई बात भी नहीं कर सकते हम लोग. घर वालों ने पूछा क्या कर रहे हो, गोवा, स्मार्ट दूं एक. Well,
bad debts and provisions for doubtful debts and provisions for doubtful debts। भाई सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। मैंने अभी केस सीक्वेंस की बारे में बात की। बंदे चिंतित हो गए, सर हमारे कंपनी अकाउंट का क्या होगा। खोलेंगे, उसका भी अकाउंट खोलेंगे, डोंट वरी। डिस्काउंट ऑन डेटर्स and the bad debts recovered। There are three parts that we have to talk about in this. Let us try to focus first upon that how these things are presented to us in the examination. Suppose we have been given a Chotas trial balance, an extract of it. In this trial balance extract, we have been provided debtors 15,20,000, bad debts 10,000. That's it. And then we have been given in the form of additional info. Further bad debts amounted to rupees 20,000. That's it. There is no case of provision for doubtful debt. There is no case of provision for discount on debtors. We have been simply given the bad debts in the trial balance and then the bad debts in the additional information or adjustment as well. Now, out of this, the bad debts which are being provided to us within the trial balance means those bad debts are already been adjusted or accounted or not. So, those will not have any further impact excepting to present it in our profit and loss account. Whereas, the additional bad debt जो हमें ट्रायल बैलेंस के बाद इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट दिया गया है दैट देयर इज अ फर्दर बैड डेट ऑफ 20,000, ये जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए 10,000 है उसके अलावा 20,000 रुपए का और बैड डेट हुआ। मतलब ये हुआ कि इस 20,000 का अब तक हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है और अगर इस 20,000 का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो पहले वी विल बी रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 20,000। तो इसे हमें ट्रेड रिसीवेबल या कि डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन द बैलेंस शीट एंड साथ ही साथ हमें क्योंकि ये हमारा खर्च है इसलिए P&L अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा नहीं। सो what will be the solution of this? If this is my profit and loss account, let's assume it to be debit side only. This is my profit and loss account. We are considering only debit side and along with that we need the balance sheet also, but balance sheet में हम लोग सिर्फ assume कर रहे हैं asset side. This is debit of my profit and loss account. This is balance sheet का asset side.
राइट। तो अब सबसे पहले बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल्स एज गिवन टू अस इज 15,20,000 है ना, में से फर्दर बैड डेट हुआ 20,000 रुपए, देयरफॉर लेस फर्दर और न्यू बैड डेट्स ₹20,000 and balance to the outer amount column ₹15 lakh। तो नेट डेटर मेरा जो बैलेंस शीट में बचा हुआ है वो कितना है 15 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स as given in trial balance is 10,000 add further bad dates or new bad dates ₹20,000 and to the outer amount column the total of the two, that is 30,000। Did you people understand this? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एडिशनल बैड डेट की सिचुएशन है, इसलिए हमने सिर्फ उतना सब्ट्रैक्ट किया P&L अकाउंट में। टोटल बैड डेट आया जो 10,000 हमारे ट्रायल बैलेंस में था वो भी, प्लस जो 20,000 का एडिशनल बैड डेट हुआ वो भी। इज राइट? नाउ suppose in the same question we have been given the situation something like this। आप लोग लिखते समय इसको क्या करो, इन एग्जाम्पल 1 द फर्दर चेंज, इन एग्जाम्पल 1 द फर्दर चेंज, इन एग्जाम्पल 2 जिसमें भी हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूएशन में लिखो। हर एग्जाम्पल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2। I've been provided in the trial balance daters 15,20,000, मुझे दिया गया बैड डेट्स 10,000 और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹10,000 एंड द फर्म, सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्म वांट्स टू मेंटेन और फर्म वांट्स टू प्रोवाइड फॉर maintain the provision for doubtful debts at 1% of debtors, at 1% of debtors। Now understand, observe and remember, आपको कौन से डेटर का 1% मेंटेन करना है? क्या वो 15,20,000 है या फिर सिर्फ 15 लाख? एंड द आंसर टू दैट इज सिंपल, 15 लाख। क्यों? क्योंकि जो डेटर्स आपके ऑलरेडी बैड डेट में कन्वर्ट हो चुके हैं उसके लिए आपको अगेन एडिशनल प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रोविजन सिर्फ जो बचे हुए डेटर्स हैं सिर्फ उसी के अगेंस्ट करने वाले हो, आपके पूरे डेटर्स के अगेंस्ट नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन द ट्रायल बैलेंस, सॉरी इन द बैलेंस शीट ऑन टू द असेट साइड विल हैव द सिनेरियो समथिंग लाइक दिस। बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर्स 15,20,000 लेस फर्दर बैड डेट 20,000, सो बचा हुआ डेटर 15 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, तो हमारा बचा डेटर्स 14,85,000। इज इट राइट? अब एक ऑब्जर्व करिए दोस्तों कि हमारे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स का जिक्र है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जिक्र नहीं है। मतलब टिल नाउ वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
तो अब अगर फर्म को 1% प्रोविजन बनानी है तो ये उनका पहली बार प्रोविजन बनाना हुआ है नहीं. And because they are making the provision for doubtful debt for the first time, therefore, such provision will be appearing separately in the profit and loss account. उसे हमें बैड डेट्स में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है. एडजस्टमेंट कब होगा? प्रोविजन का अकाउंट कब बनाएंगे? जब हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया होगा तब. Did you people understand this? And mind well, this being the first year of making the provision, my journal entry for provision will be profit and loss account debit to provision for doubtful debt account 15,000. Amount कहां से आई? बैलेंस शीट से. और प्रोविजन कहां से बनाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. Am I right? So P&L account, debit side to provision for doubtful debts 15,000. दोनों आइटम बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों के दोनों ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, सॉरी P&L अकाउंट में आ रहे हैं या नहीं? Write down the note on this. When no provision is given, in the trial balance, when no provision is given in the trial balance, comma, and a provision for doubtful debt and a provision for doubtful debt is created comma, in the profit and loss account, in the profit and loss account, provision as well as bad debt, provision as well as bad debts will be appearing separately. Will be appearing separately. Clear सबके लिए? पक्का? Let's come further now. Suppose I've been given the trial balance जिसमें डेटर्स हैं, बैड डेट्स हैं, and I've been provided further provision for doubtful debts. On the credit side, rupees 20,000. Means the provision is already existing in the trial balance. This provision is nothing but what you used to call as the old provision. Correct है? अब अगर old provision हमारे ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया गया है, उसको एडजस्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है या नहीं? अगर आपको on the other day when we were taking the example related to provision, मैं कह रहा था कि वो कौन था? रॉनी था ना? हाँ, रॉनी को पार्टी देनी है, उसके लिए उसने पैसा अलग उठा के रखा हुआ है. तो दिस प्रोविजन इज व्हाट? वो प्रोविजन इज नथिंग बट पैसा अलग उठा के रखना. अब जब बैड डेट होगा तो बैड डेट वोंट बी ट्रांसफर्ड टू P&L account, but instead of that, bad debt will be transferred to what? To the provision account. तो जब कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं,
जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दी जाए और साथ ही साथ आपसे यह भी कहा गया है दैट द फर्म वांट्स टू मेंटेन और द फर्म वांट टू प्रोवाइड फॉर द डाउटफुल डेट्स एडिशनली, तो in that case I would always suggest to prepare a separate working note on the provision for doubtful debts. क्यों? जब आप वर्किंग नोट बनाते हो तो आपके पास अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, जो आपको पता चलता है कि वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाली है या P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में. Is it point right? So in this case what we will do is we'll first prepare our normal balance sheet and P&L account. अगर आप ऑब्जर्व करो मैंने P&L अकाउंट को ब्लैंक रखा है. क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस आएगा सिर्फ उतना ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. Now observe the working note. Observe it categorically first and then write it. Provision for doubtful debts. हमें क्या कहा गया कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 20,000 रुपए की, पिछले साल में क्रिएट की थी, इस साल में फॉरवर्ड हुई, तो इट विल बी अपियरिंग एज एन ओपनिंग बैलेंस और नॉट. तो इन माय प्रोविजन अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹20,000. इज दैट राइट? अब आपको पता चला कि 10,000 रुपए के बैड डेट तो आपके ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, वो तो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, प्लस 20,000 रुपए का आपका एडिशनल बैड डेट्स हुआ है जो आपने बैलेंस शीट में डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर लिया. करेक्ट? जर्नल एंट्री फॉर्मेट में डिस्कस करें तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 20,000, ये एंट्री आपकी हो चुकी. तो इसका मतलब आपके टोटल बैड डेट अब कितने हो गए? 30,000. 10,000 ट्रायल बैलेंस वाले, 20,000 रुपए एडजस्टमेंट वाले, तो टोटल 30,000 के बैड डेट्स कहां जाएंगे? अगर प्रोविजन नहीं होता तो दैट 30,000 वुड हैव गॉन टू P&L अकाउंट, जो हम लोग अब तक के पिछले दोनों एग्जांपल में करते आए. पर यहां हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं, और क्योंकि प्रोविजन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो इसलिए बैड डेट्स के 20,000 विल नॉट गो टू P&L अकाउंट नाउ. द बैड डेट्स का 20,000 विल नाउ बी डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट. मेरी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. सो प्रोविजन अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स. 10,000 के मेरे एग्जिस्टिंग बैड डेट प्लस 20,000 के मेरे फर्दर बैड डेट, टोटल 30,000 is getting debited to my provision for doubtful debt account. Are you able to understand? अब मुझसे कहा गया that the firm wants to maintain a further provision of 15,000, 1% of debtors, जो हम लोग बैलेंस शीट में से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. अब अगर 1% 15,000 रुपए का आपको फर्दर प्रोविजन बनाना है तो वो 15,000 आप इस साल से अगले साल में मेंटेन करने वाले हो या नहीं, और क्योंकि वो मेंटेन करने वाले हो तो उसके लिए हमको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है. दैट इफेक्टिवली बिकम्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन अकाउंट. अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस एज अ पॉइंट फॉर एवर, that provision for doubtful debts to be maintained, provision for doubtful debt to be maintained के लिए हम लोग कभी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं. दैट इज ऑलवेज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट. अगर प्रोविजन टू बी क्रिएटेड कहा जाए
तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। बट अगर मेंटेन्ड कहा गया तो उसके लिए हमको एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। माइंड वेल, आईसीएआई ने अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं, आईसीएआई मॉड्यूल में जितने भी सवाल छपे हैं, इन दैट दे हैव ऑलवेज कंसीडर्ड द प्रोविजन शुड बी मेंटेन्ड और प्रोवाइडेड फॉर। तो मेंटेन्ड और प्रोवाइडेड फॉर विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट। एम आई क्लियर ऑन दिस? सबके लिए क्लियर? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द पूरा आपका आंसर बदल देता है। आईसीआई पॉइंट ऑफ व्यू से maintained provided is one and the same thing. That means it will be considered as closing balance of provision account. छोटी सी बात है बट इससे आपका आंसर बहुत बड़ा इंपैक्ट में लाता है। Alright? So to balance carried down rupees 15,000. This is nothing but provision maintained और आपकी भाषा में न्यू प्रोविजन। जानकारी के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, अब अगर हम लोग जब प्रोविजन अकाउंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है डेबिट साइड का टोटल है 45,000 रुपए, बराबर है, और क्रेडिट साइड का टोटल है सिर्फ 20,000 रुपए। इफ यू वुड रिमेंबर एंड ऑब्जर्व दिस प्रोविजन अकाउंट विच आई हैड प्रिपेयर्ड हियर, मैंने कहा था इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट इन द प्रोविजन अकाउंट, दैट मींस यू वांट टू इंक्रीज द प्रोविजन, और क्योंकि आपको प्रोविजन बढ़ानी है तो आप उसके लिए एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोग प्रोविजन अकाउंट से कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। So in the provision account on to the credit side by profit and loss account rupees 25,000. Is it point right? And this will appear to what? To the profit and loss account on to the debit side to provision for doubtful debt. रुपीज 25,000। हालांकि इसी चीज को आप अपनी भाषा में, जो जिस तरह से आपको 11th 12th में सिखाया जाता है, उस तरह से भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? ऑब्जर्व इट। मान लो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, राइट? आप क्या लिखते हो? टू बैड डेट्स, जिस तरह से आपको 12th में सिखाया गया था। इन दैट केस यू वोंट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट। मैं इस पर्टिकुलर मेथड के कतई खिलाफ हूं। रीजन यहां पे याद रखना पड़ता है, क्या ऐड करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है। जब हम लोग अकाउंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमको याद नहीं रखना पड़ता है, हम लोग जर्नल एंट्रीज को फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? तो आप क्या लिखते थे? न्यू प्रोविजन, नहीं, न्यू आरडीडी रुपीज 15,000, एड न्यू बैड डेट्स 20,000, add old bad dates 10,000 and then less old provision या फिर old RDD rupees 20,000, outer amount column 25,000. Correct? This is how you used to present it. I would generally suggest that account form gives you the simpler answers. I don't know about you people. आप जिस चीज के साथ जैसे कंफर्टेबल हो वैसे फॉलो करो. There is nothing wrong in that. Is the point right? क्लियर जा रहे हैं सबके लिए? मतलब आज ये 4 दिन में घर वालों ने इतना बोल दिया तुमको कि इतना शांत हो गए वापस से.
सर आप घर पे मत रखवा करिए हमको बस प्लीज सर। वो घर पे रहते ना मतलब टॉर्चर होता है सर हमारे साथ। क्लास में होते हैं कम से कम घर वालों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यहां जाके पढ़ाई तो करते हैं, करे नहीं करे वो बात अलग है। करते हो सर, आप छोड़ते हो तो दैट इज फाइन। बट घर वालों को सच में ऐसा लगता है कि आप घर पे हो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। मतलब हम लोग बुक्स लेके बैठे साथ में तो भी उनको भरोसा नहीं होता कि पढ़ाई कर रहे हैं। अरे बुक्स हैं, बुक्स मतलब मोबाइल भी नहीं है, बुक्स हैं। बुक्स में से अगर अंदर कुछ और चल रहा होगा तो बुक्स में क्या चलेगा, वो बुक्स में सिर्फ वही चल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता, राइट। हाँ, वेल आई होप आई एम गोइंग गुड फॉर एवरीवन। ओके, द नेक्स्ट वन, suppose I've been given in my trial balance as discount allowed 8,000, a provision for discount on debtors to be created at 0.5% of debtors। मतलब यह हुआ कि आपके पास बैड डेट्स है, आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आपके ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउ भी किया गया है, और साथ ही साथ आपको कहा गया है कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मेंटेन करो और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी मेंटेन करो। हालांकि आपके ट्रायल बैलेंस में किसी भी तरह का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं दिया गया है। आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं कोई किसी तरह का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं है, पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में कहा गया है कि आपको एक प्रोविजन बनानी है डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ डेटर्स। अब कौन से वाले डेटर्स पे बनाएंगे? आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके डेटर्स बच रहे हैं, मतलब 14,85,000 वाले, उस अमाउंट पे आप 0.5% का प्रोविजन बनाओगे। क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस याद होगा, क्या होता है ना, अरसा पहले पढ़ाई हुई चीजें ना वापस वापस याद दिलानी पड़ती है। इफ यूड ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यहां हमने क्या लिखा था कि पहले आपको जो डेटर्स दिए गए उसमें से आप डेटर्स के एडजस्टमेंट्स खत्म कर लो, चाहे वो रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स की हो, चाहे वो कलेक्शन फ्रॉम द सेम डेटर, पेमेंट टू द सेम क्रेडिटर वाली बात हो। पहले आप डेटर्स को करेक्ट कर लो। डेटर्स करेक्ट होने के बाद में उसमें से आप फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर लो। अब फर्दर बैड डेट सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आपका डेटर बच रहा है उसके अगेंस्ट आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लो, राइट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने के बाद जो डेटर बचेगा दैट इज नथिंग बट योर गुड डेट्स, अच्छे बच्चे। डिस्काउंट तो अच्छे बच्चों को ही दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया ये डेटर है मेरा, या तो ये पैसा डुबा देगा या टाइम के पहले दे देगा। ये कौन सी एनालॉजी है भाई? बंदा या डुबाने में तत्पर होगा या पैसा देने में तत्पर होगा। दोनों चीजें कर सकता है। ऐसे बंदे बड़े कम होते, नहीं होते, राइट।
यार ये बंदे पे कॉन्फिडेंस बहुत है, दे दिया ना तो अगले 15 दिन में पैसा दे देगा, नहीं दिया तो पर भूल जाओ. You cannot have this as a category, right? So for that purpose, what we need to do is जो आपके डेटर्स आपके प्रोविजंस को एडजस्ट करने के बाद बच रहे हैं, उसके अगेंस्ट ही आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओगे. इज इट पॉइंट राइट? पहली बात. दूसरी बात, आपके ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दी गई है क्या? नहीं. पर डिस्काउंट अलाउड तो दिया गया है या नहीं? ये हमारे एग्जांपल 2 वाली सिचुएशन हो गई कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिए गए हैं और एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया गया है. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास दोनों आइटम आएंगे. कौन से दोनों आइटम? डिस्काउंट अलाउड अलग से डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अलग से अपीयर होगा. जहां तक बात है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, उसके बारे में तो हमने एग्जांपल 3 में डिस्कस कर लिया, वही कंटिन्यू होगा. आई होप आई एम गोइंग राइट फॉर एवरीवन. जैसे जैसे एग्जाम्पल बिल्ट हो रहा है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ट्राई टू अब्सॉर्ब एवरी कंसेप्ट वन बाय वन. हर कंसेप्ट को इंडिपेंडेंटली समझने की कोशिश करिए. आई होप आई एम गोइंग फाइन फॉर एवरीवन. पक्का? खा लो, पकने के बाद खाना चाहिए ना. So, how will it come in our financial statements? Let's observe that. Solution. Now this 14,85,000 will not go to the outermost column. क्यों? क्योंकि हमें आगे प्रोविजन बनानी है या नहीं? कितने की प्रोविजन बनानी है? 0.5% ऑफ गुड डेट्स. अच्छा बचा, करेक्ट. सो लेस. हालांकि ये खिचड़ी आप बैलेंस शीट के अंदर बनाने के बजाय इसके लिए आप एक अलग से वर्किंग नोट प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हर चीज अगर बैलेंस शीट के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, जगह कम होती है वहां पे हमारे पास. वहीं इसके लिए अगर अलग से वर्किंग नोट बनाती तो फैला के लिख सकते हैं पूरे पन्ने पे, राइट. सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 0.5% कितना होगा? 7425, and therefore the balance to the outermost column 14,77,575. Is that right? जहां तक बात है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, वहां कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है क्या? वर्किंग नोट कंटिन्यूज टू रिमेन सेम और नॉट? है ना? डिस्काउंट अलाउड जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया था, वो डिस्काउंट अलाउड भी तो प्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं? वो हमारे लिए खर्च है या नहीं? इसलिए दैट अपीयर्स एज सच इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000. और इसके अलावा हमने 7,425 रुपए का प्रोविजन बनाया या नहीं? जो डिस्काउंट अलाउ हो चुका है उसके अलावा प्रोविजन की गई है ना? ये 8,000 का डिस्काउंट अलाउड आपके 7,425 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा. एडजस्ट कब होगा? जब आपके पास पहले से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दी गई हो तब. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया है तो ही आपके ट्रायल बैलेंस का या फिर टोटल बैड डेट्स का एडजस्टमेंट प्रोविजन के अगेंस्ट होता है, तो ही आपके डिस्काउंट अलाउड का एडजस्टमेंट प्रोविजन के अगेंस्ट होता है. अगर ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं दिया गया है, तो आप ट्रायल बैलेंस में या कोई से भी डिस्काउंट या बैड डेट को प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करोगे. एम आई क्लियर ऑन दिस? इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल 2 को ऑब्जर्व करो, यहां जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, यहां पे हमने बैड डेट्स को अलग से दिखाया, प्रोविजन को अलग से दिखाया. हमने एडजस्ट किया क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में किसी भी तरह की प्रोविजन नहीं थी. हालांकि जब हम लोग एग्जाम्पल 3 में गए,
उस समय पे हमारे ट्रायल बैलेंस में हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया गया है, इसीलिए हमने बैड डेट को कहां एडजस्ट किया, प्रोविजन के अगेंस्ट, ना कि डायरेक्टली P&L अकाउंट में। आर एबल टू अंडरस्टैंड? सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर ऑल्सो, कि क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं दिया गया है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट हम लोग प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अलग से अपीयर होगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग से अपीयर होगा। सो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कुछ लोगों को लग रहा होगा मास्टर जरा ज्यादा ही खींच रहा है कंसेप्ट को, बट माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सटेंड इट बिकॉज द पीपल डू मेक द मिस्टेक्स इन दिस। कई सारे आंसर्स में मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जब भी वो आप टेस्ट सीरीज देते हो तो हम लोग रैंडमली पेपर्स चेक करते हैं, जो चेक होके आते हैं पेपर्स वो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, और उसमें से हमको पता चलता है कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। एंड दीज आर द सीरियस पैथेटिक मिस्टेक्स। क्यों? ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है। जब आपका बेस कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो आप इस तरह की मिस्टेक्स जनरली नहीं करते हो। अगर आपने इस तरह की मिस्टेक करी है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने या तो कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझा या तो उस कंसेप्ट को ठीक से अप्लाई करना नहीं सीखा। इसीलिए मैं इस चीज पे, स्पेशली बैड डेट हो, डेप्रिसिएशन हो, इन टॉपिक्स पे मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि यही एरियाज हैं। आप गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर पे कभी मिस्टेक नहीं करते हो, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होती है। प्रोप्राइटर विड्रू द गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें गलतियां कभी ऑब्जर्व नहीं होती है। गलतियां कहां निकलती हैं? तो ऐसे वाले एडजस्टमेंट जहां पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे असेट का अगर एग्जांपल लिया जाए, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया जाए, जब हम लोग आएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। जब वहां पे आएंगे तब हमको समझ में आएगा यार कोई नया असेट खरीद लिया तो भी गड़बड़, कोई असेट ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया उसमें भी गड़बड़, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट उसमें भी गड़बड़। सो इफ यू वांट टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू दैट इज यू शुड कंसीडर each and every concept in detail first। और जब आपका इंडिविजुअल कंसेप्ट सही हो जाता है, जब आप एक एस्पेक्ट को सही तरह से फोकस कर सकते हो, तो अपने आप आपके आंसर पूरे के पूरे सही बनना चालू हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट फोर्स अपॉन, राइट? बेटा इच्छा तो बहुत सिंपल है। एक बार हमने अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया तो हमारा आंसर करेक्ट ही आना चाहिए। माइंड वेल, 3 टॉपिक्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, 40 मार्क कैटर करते हैं। 40 कैश मार्क्स हो सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट्स को ठीक से अप्लाई किया तो। अभी भी जिन लोगों ने मैंने शेयर किए हुए क्वेश्चंस को अब तक के एनपीओ के सॉल्व नहीं किया है, अभी भी समय है, हमने अब तक के डिस्कशंस नहीं किए, सॉल्व कर लो। टेक अ डे ऑफ for that particular thing only, leave the other subjects for 1 day, do those questions। 12 या 13 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 18 क्वेश्चंस, वैसे 12 13 25 होते हैं, 7 कम ही हुए। तो 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 20 मिनट के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 18 दूनी 36, 6 घंटे का टाइम। अगर आप 3 सेशन में आधे घंटे के ब्रेक के साथ बैठते हो, 7.5 घंटे की टोटल रिक्वायरमेंट। सुबह 7 बजे बैठो, दोपहर के 1:30 बजे तक सारा कंप्लीट हो जाता है। सर आपने कैलकुलेशन बड़े फास्ट करते हो, ये हमको पता है, पर हमें तो आंसर करने हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ी करने हैं। तो बट एनपीओ का क्वेश्चन 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेता है जब तुम सॉल्व करो तब। When I'll be solving, I'll be taking somewhere around 10-12 minutes for one question with the presentation. With the presentation. लाइन मार के इज्जत से। वो बात अलग है कि मैंने कभी लाइन मारे नहीं जब मैं फाउंडेशन इंटर फाइनल में था, तब एग्जाम पेपर्स में भी सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट था जिसमें लाइन मारे बगैर काम नहीं होता था, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स बनते थे। अकाउंट्स के लिए मैंने कभी लाइन नहीं मारा। आई यूज्ड टू फोल्ड द पेज एंड वुड राइट लाइक दैट।
सिर्फ ऐसा है कि जब मैं लिखता था तो सीधी लाइन में चलता था, हाँ, नहीं तो वो हम लोग लिखना जब चालू करते हैं तो ऐसे जब जाते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर अस। एनीवेज, ये कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए? पक्का? लेट्स डू वन मोर एग्जांपल एंड उसके बाद मेरा वाला एग्जांपल आपके लिए। कुछ तो बनता है ना, मतलब जब ऐसा लगने लग जाए कि हमको बहुत आता है, तब जमीन पे वापस आना जरूरी होता है, राइट? Suppose we have been given example number 5. Provision for discount. Rupees 5,000. ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया गया है। मतलब क्या? जो कुछ भी इस साल के बैड डेट्स होंगे, चाहे ट्रायल बैलेंस में दिए हो, चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हो, सारे के सारे बैड डेट्स हमें रिस्पेक्टिव बैड डेट्स या डिस्काउंट हमें P&L अकाउंट को ट्रांसफर करने की बजाय कहां ट्रांसफर करने? टू द रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट। इज इट पॉइंट राइट? इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारा डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन ये अलग अलग नहीं आएगा, ये दोनों सिंगल आइटम करके डायरेक्टली P&L अकाउंट में आएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज टू बी मेंटेन्ड। करेक्ट? तो जहां तक बैलेंस शीट की बात है वहां कोई बदलाव नहीं है। बैलेंस शीट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। फर्क कहां आएगा? इन द P&L अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट अलग से बनाना है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अकाउंट भी अलग से बनाना है। ऑब्जर्व इट। एज फार एज द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज सॉरी डाउटफुल डेट इज कंसर्न, वो हम जैसा बना चुके हैं वही कंटिन्यू होने वाला है, सेम एग्जांपल होने की वजह से। मैं चाहता तो हर एग्जांपल में अमाउंट चेंज कर देता, बट वो जब सेम अमाउंट वाला एग्जांपल कंटिन्यू होता है, बिल्ट होता है, तो हमें बदलाव समझ में आता है कि कहां कैसे बदलाव हो रहा है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग इट। अगर आपको याद होगा, मैंने एक लाइन लिखवाई थी, द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आर सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सेम कंसेप्ट। कैसे? वो ऐसे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा वाला बैलेंस? जो हमारे ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया गया है उसका बैलेंस कितना? 5,000 रुपए। करेक्ट? ड्यूरिंग द ईयर एज पर ट्रायल बैलेंस वी हैव अलाउड द बैड डेट्स। हाउ मच? सॉरी, अलाउड द डिस्काउंट। हाउ मच? 8,000। ये 8,000 का जो डिस्काउंट है, जब हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन नहीं थी तो हमने डायरेक्टली P&L को डेबिट किया था, पर अब क्योंकि हमारे पास पहले से प्रोविजन है तो हम लोग बैड डेट्स कहां ट्रांसफर करेंगे? टू द प्रोविजन अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट अलाउड। हालांकि यहां सिर्फ ट्रायल बैलेंस के दिए गए हैं, अगर कोई डिस्काउंट अलाउड हमारे पास एडजस्टमेंट में होते तो वो भी ऐड होके यहां डेबिट होते या नहीं, राइट? एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा बैलेंस कैरीड डाउन? जो आपका न्यू प्रोविजन है, दैट इज 7425 वाला है ना। वापस से अगर आप प्रोविजन अकाउंट को ऑब्जर्व करो तो डेबिट साइड का टोटल है 15,425, क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000 रुपए। मतलब आपको प्रोविजन बढ़ाना है या नहीं?
और क्योंकि प्रोविजन बढ़ाना है इसीलिए आपकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ₹10,425. एम आई राइट? सो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,425. और हमारे P&L अकाउंट में कैसे आएगा ये, डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज पर वर्किंग नोट 1 25,000 एंड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 10,425. Am I clear? Are these things absolutely clear for everyone? Pakka? Okay. Add on one question. चलो क्वेश्चन के स्टार्ट में डिक्लेयर कर देता हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन है. नहीं टाइम तो नहीं हुआ, पर क्वेश्चन देख ले बस. यहां तो सॉल्व नहीं होना है. कर दिया तो कौन था, was it? कर दिया तो अभी सर मैंने कुछ नहीं बोला. यही सरेंडर कर रहे हैं. नहीं यार कहां फंसा रहे हो, ये मास्टर रात को 12 बजे तक यही बिठाएगा फिर. नहीं अब तो तू सॉल्व करके ही जा, वो भी करेक्ट आंसर. पहले से चेतावनी है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. लिखो. नहीं देखो कैसा है ना, फैक्ट पहले से क्लियर किया हो ज्यादा सही है. चुप बाद में बोले सर आप तो इतने गंदे वाले क्वेश्चन पूछते हो, आईसीआई तो ये लेवल तक के पहुंच ही नहीं सकती है. नहीं पहुंचे ना, हमारी तैयारी जीत की होनी चाहिए ना, राइट? आईसीआई पहुंच जाए मतलब फिर वो मतलब ही क्या हुआ मनीष सरेडिया के क्वेश्चन पूछने का, राइट? अरे 3 बार रिजेक्ट कर दिया मेरे को यार अब तक के पेपर सेटिंग के लिए. नहीं बोले हमको, हमने सिर्फ एकत्वम वालों से थोड़ी ना पेपर पूछने, हमारे पास तो यूपी बिहार के भी बच्चे होते हैं, उनका क्या होगा. उन्होंने तो क्वेश्चन देख के चढ़े, ये हमसे नहीं होना है वापस ले लो. या फिर हरियाणवी कोई बंदा है, यो कैसे भाई, ये तो अगले अटेम्प्ट में होना है, रहने दो अगले अटेम्प्ट में आओ. अबर लिखो. द ट्रायल बैलेंस, the trial balance as on 31st March 2023 for a business showed the debtors of showed the debtors of 25,20,000, 25,20,000 and the account payable, the accounts payable amounted to rupees 18 lakhs. 18 lakhs. Full stop. The bad debt and discount allowed during the year the bad debts and discount allowed during the year were rupees 6,000 and 14,000 respectively.
were rupees 6,000 and 14,000 respectively. Whereas the provision for doubtful debt and discount were amounting to rupees 30,000 and 6,000 respectively. 30,000 and 6,000 respectively on 1/4/22. On 1/4/22. Full stop. Following was discovered. Next line. Following was discovered after the preparation of trial balance. After the preparation of trial balance. Number one. Radhesham, a debtor, was declared insolvent. From whom 40,000 was receivable. 40,000 was receivable. Comma. Now recoverable only 90%. Now recoverable only 90%. Number two. An amount of 10,000 was receivable from J and included in debtors above, comma, 5,000 were payable to him. 5,000 were payable to him, included in creditors above. Number थ्री है कि 4 है? 3 है ना अब तक के? हाँ, बहुत टाइम है. Number 3. A credit sale of 9,000 remained unrecorded.
Number 4. Ramesh, a customer, settled his outstanding of 50,000. Settled his outstanding of 50,000 against a discount at 10%. Against a discount at 10%, comma, such discount was not posted from cash book. Such discount was not posted from cash book. Next, number 5. Write down. मैंने तो कहा था ना होमवर्क है, अभी करना भी नहीं है, चिंता मत करो, बस लिखते जाओ. नंबर 5, देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन के भरोसे तुम फाइनल अकाउंट में डेटर से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, डाउटफुल डेट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अभी तुमको लिखते समय ऐसे लग रहा हो मास्टर क्या कर रहा है, बट माइंड वेल, जब एग्जाम में जाओगे ना तो ये वाला प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जाना, ये सॉल्व करके जाओगे. फाइनल अकाउंट का किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. वन कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन. और ऐसे कई बार सिचुएशंस बनती हैं जब वो मन बन जाता है अच्छा क्वेश्चन बनाने का. सो राइट डाउन. नंबर 5, a purchase of 15,000 from Raghu was recorded in sales book. Was recorded in sales book. Number 6. An asset was sold with a book value of 20,000 for rupees 10,000 on credit, was recorded in sales book. Was recorded in sales book. कितने हो गए? Last one. The firm maintains the provision for doubtful debt and the provision for discount on debtors. The firm maintains the provision for doubtful debt and the provision for discount on debtors at 0.5% and the 0.25%, 0.5% and the 0.25%, 1/4, 0.5% and 1/4% of the outstanding debtors. अब क्वेश्चन है, ये सारा तो इंफॉर्मेशन था. You are required to prepare the financial statements extracts
the financial statements extracts using the above information. इतना सा सवाल है एक लाइन का, वो तो इंफॉर्मेशन है ना. So okay, so that's it for the day. This question goes as homework. I insist you should solve it. Question will hardly take 10 minutes, not more than that. I'm honestly saying this. Read it carefully, please. 1 minute. Read it carefully and then start solving it. Okay? All the very best. We'll be meeting tomorrow. Thank you.